Hallelujah. Hallelujah. Why you are not sharing the Lord's word? You are also today. All the boys are saying, सभी बच्चों ने कहा तुमने क्यों परमेश्वर के वचन को नहीं कहा? come. अच्छा. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Our pastor is wonderful worshiping. आपके पास्टर बहुत ही अच्छे आराधक है. I feel the anointing at time. मैं खुद उस समय परमेश्वर के अभिषेक को महसूस कर रहा था. Yeah, you are very lucky. God is given this type of pastors. आप बहुत God is ही given for you. आप बहुत ही भाग्यशाली है कि परमेश्वर ने आपके लिए इस तरीके से पास्टर को दिया है. I welcome all of you in the name of Almighty God. Grace and peace with you. मैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूँ. परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके साथ बनी रहे. May the Almighty God Jesus Christ bless the pastor and his family members and all of you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पास्टर उनकी पूरी फैमिली को और सभी विश्वासियों को आशीष करे. Today the Almighty God has given an opportunity to share the word of the God with you. आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सभी के साथ शेयर करूं. For that I submit my service thanks to the Lord and Almighty. इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी सर्विस को परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूं. Let us go to the message. आइए वचनों पे चले. Today we are going to meditate about the anointing of the Holy Spirit. आज हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं. Anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक is very important. The anointing and the Holy Spirit. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. पवित्र आत्मा का अभिषेक. One man to get the anointing and the Holy Spirit without baptism, nobody to receive. कोई भी बिना बपतिस्मा के पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता. One man is not living in Christianity in anointing and Holy Spirit. कोई भी इंसान मसीह में बिना पवित्र आत्मा और बिना अभिषेक के साथ नहीं रह सकता. This part tells about the history of Pentecostal, that is the apostles filled with the Holy Spirit. यह जो पाठ हम अध्ययन करने जा रहे हैं ये पेंटिकोस्टल के इतिहास के बारे में बताएगा और किस तरीके से प्रेरितों ने पवित्र आत्मा ग्रहण किया इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं. There is nothing more important in Christian life than the anointing of the Holy Spirit. मसीही जीवन में कुछ भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती सिवाय पवित्र आत्मा के. There is nothing more important in Christian life than the anointing of the Holy Spirit. मसीही जिंदगी में कुछ भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है पवित्र आत्मा के अभिषेक को छोड़कर. Yeah, without Holy Spirit you are not a Christian. बिना पवित्र आत्मा के आप एक मसीही नहीं हैं. Without anointing you are not a Christian. बिना अभिषेक के आप क्रिश्चियन नहीं हैं. Compulsory you are speaking in tongues, otherwise how you will very relation to God. आपको अन्य भाषा में बोलना बिल्कुल ही जरूरी है वरना आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसे रहेगा. Pastor says immediately you come to sing a song. जैसे पास्टर कहते हैं तुरंत ही आपको आना है और गाना गाना है. Pastor says immediately you will pray. जैसे पास्टर कहते हैं आपको तुरंत ही आना है और प्रार्थना करना है. So the anointed servant no hesitate, immediately they singing, immediately they praying. So they need for the anointing and the Holy Spirit. Anointing and Holy Spirit, how to get in your life? You take the baptism, you are living, you are reading the Bible, you attend the church, and also you are obedient to everybody, to God and pastor. Then after you receiving the anointing. जो अभिषिक्त लोग होते हैं उन्हें तुरंत ही जब पास्टर कहते हैं तो तुरंत ही गाना गाना है, तुरंत ही प्रार्थना करना है. तो परमेश्वर के अभिषेक को कैसे प्राप्त करें? सबसे पहले बपतिस्मा ले, उसके बाद पवित्र आत्मा को ग्रहण करें. Here also come to pray. In your house also you are praying, otherwise you will not receiving the anointing and Holy Spirit. यहाँ पे भी आपको प्रार्थना करना है और आप जब अपने घर जाते हैं तब भी आपको प्रार्थना करना है, अन्यथा आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं प्राप्त कर पाएंगे. You are asking, you are crying, Jesus Christ, the great D.G.S. Janagaran to get the salvation, the world famous universal D.G.S. Janagaran get the salvation, take the full baptism. 7 years they crying, they asking, kneel down. Then after the 7th year, God is directly come inside the room and to touch, then receiving the Holy Spirit. Then after to shake the wall, the man is praying, the dead man is running, the D.G.S. Janagaran is praying, the blind eyes are open. That type of God is given the gifts. The why they receiving the Holy Spirit, otherwise anybody did not do the ministry. Amen.
जैसे आपको भी रो के आंसुओं के साथ बहा के परमेश्वर से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। जैसे कि जो वर्ल्ड में जो बहुत फेमस है, जो कि पास्टर डीजीएस दिनकरन थे, वो भी परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना करते थे। 7 साल से रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे। तब एक दिन उनके कमरे में परमेश्वर ने उन्हें छुआ और उसके बाद परमेश्वर ने बहुत तायत रीति से इस्तेमाल किया और उसके बाद ही उन्होंने सेवा स्टार्ट की। ऐसा इसीलिए परमेश्वर के दास ऐसा कह रहे हैं कि जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उसके बाद ही आपको सेवा करना है। Wonderful translation. God is blessed. Hallelujah. हालेलुया। Yeah. Jesus promised us his power to be his witness. What promise? Jesus promised us his power to be his witness. What promise? यीशु मसीह ने हमसे अपने Jesus promised us his power to be his witness. What promise? यीशु मसीह ने हमसे अपनी शक्ति को देने के लिए वादा किया है। वो वादा क्या है? Take read Luke 24:49. लूका की किताब पढ़ेंगे। लूका की किताब 24 अध्याय उसका 49 पद। Loud voice read. जोर से पढ़ेंगे। Steady and loud voice. जोर से पढ़ेंगे। Luke 24:49. लूका 24 अध्याय उसका 49 पद। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसके तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Jesus promised us his power to be his witness. What promise? यीशु मसीह ने हमसे अपनी शक्ति देने के लिए वादा किया है ताकि हम उसके गवाह ठहरे। तो उसने क्या वादा किया है? And I myself will send upon you what my Father has promised. तो यीशु मसीह ने हमसे कहा कि मैं अपनी आत्मा को तुम सब पर भेजूंगा, जैसे कि पिता ने मुझसे कहा है। But you must wait in the city until the power from above comes down upon you. लेकिन तुम्हें शहर में वेट करना पड़ेगा जब तक वो पवित्र आत्मा की वह शक्ति तुम पर ना आ जाए। சும்மா கிடைக்காது Holy Spirit. சும்மா கிடைக்காது. You are kneel down, crying, asking, begging, then after given the Holy Spirit. आपको घुटने में आना है, प्रार्थना करना है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है, उसके बाद ही आपको पवित्र आत्मा मिलता है। Daily you are reading the Bible, otherwise God is never given the Holy Spirit. आपको हर दिन बाइबल पढ़ना है, वरना परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा नहीं देगा। You are reading or not, I have no idea. आप बाइबल पढ़ते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, But Jesus is watching for everybody. लेकिन यीशु मसीह सभी चीजों को, सभी लोगों को देखते हैं। I am going to all the places, I am a good teaching. मैं हर जगह पर जाता हूँ और मैं बहुत अच्छी शिक्षा देता हूँ। So you are reading the Bible, that words are going to inside, then the words to active in your life. जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो जो वचन है वो आपके अंदर जाते हैं और वो वचन आपके देह में मिल जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। You are not reading knowledge, that is no problem. अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। You are reading knowledge, compulsory, you are reading the Bible. अगर आपको पढ़ना आता है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको बाइबल पढ़ना ही है। But you are not reading, no blessing receiving from Almighty. यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आपको किसी भी तरीके से सर्वशक्तिमान से आशीष नहीं मिलेगी। Hallelujah. Hallelujah. You are reading the Bible, you obey the commandments, then after you are living in Pavitra, then after God is anointing in your life. आपको बाइबल पढ़ना है और उसके बाद You are reading the Bible, you are living in perfect life and obeying the commandments and also living in Pavitra, then after God is given to the anointing. आपको बाइबल पढ़ना है और मसीह में पवित्र जीवन जीना है और आज्ञाकारी भी होना है परमेश्वर के वचन के, उसके बाद परमेश्वर आपको आशीषित करता है। What is the explanation of Luke 24:29? जो भी हमने लूका 24 का 49 पढ़ा है, उसके बारे में बाइबल क्या बताती है? You are watching my word. आप मेरे बातों को सुनिए। In Luke 24:49 says, लूका 24 का 49 में बाइबल the बताती है, Lord says, I have promised to send the Holy Spirit to you from above. परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं पवित्र आत्मा को तुम पर ऊपर से भेजूंगा। If anybody so the Paul before he will not receive the Holy Spirit. तो जो पौलुस था उसने पहले पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया। Paul once against a Messiah.
once Messiah. हाँ मसीह, हाँ सॉरी, जो पौलुस था वो मसीह का विरोधी था, So that time Paul is not receiving the Holy Spirit. इसलिए जो पौलुस था उस समय उसने पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया। Then after Paul, the great disciple, they're writing the many chapter in full New Testament. He immediately take the baptism. Then after they receiving the Holy Spirit. Then after Paul go to teaching in Jews inside Jesus Christ is a creator. He is died again. The third day is alive again coming. That type of the bold speech. How after the baptism, then after they receive the Holy Spirit, then after the anointing, then after they speaking the wonderful word. जो पौलुस था जो कि एक महान चेला था, वो सबसे पहले मसीह का विरोधी था, लेकिन जैसे उसने बपतिस्मा लिया उसके बाद पवित्र आत्मा ग्रहण किया, उसके बाद उसने नए नियम में बहुत सारे अध्याय को, बहुत सारे पत्रियों को उसने लिखा, और उसके बाद वह बपतिस्मा के बाद यहूदा में गया और बहुत सारे यहूदियों को प्रचार किया कि यीशु मसीह सृष्टि करता है, यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए दिए हैं। तो इस प्रकार का वो निडर होकर परमेश्वर की सेवा करने लगा। ये सब चीज कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ उसके बपतिस्मा लेने के बाद। हालेलुया। हालेलुया। Acts 18:5। या प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 5वां पद। Loud voice। जोर से पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 5वां पद। Loud in हिंदी। जोर से। जब सिलास और तीमुथियुस मक्की दुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीहा है। Paul gave his whole time to preaching the message, testifying to the Jews that Jesus is a Messiah. पौलुस जो है वो अपना पूरा समय यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए देने लगा और यहूदियों को बताने लगा कि यीशु ही मसीहा है। Jews peoples is not obedient peoples. जो यहूदी लोग होते हैं वो आज्ञाकारी लोग नहीं होते। Disobedient peoples. वो अनाज्ञाकारी लोग होते हैं। Heavyweight peoples. वो नफरत करने वाले लोग होते हैं। So heavyweight peoples. Yeah. So in Bible says the Jewish peoples is heavyweight peoples. बाइबल बताती है कि जो यहूदी लोग होते हैं वो नफरत करने वाले लोग That होते people हैं। says Jesus Christ is not a Messiah. The Messiah is coming. That people says. वो लोग कहते हैं कि जो यीशु है वो मसीह नहीं है, मसीहा आने वाला है, ऐसे कहते हैं। Before also Paul also they says Jesus Christ is not a Messiah. Jesus Christ is not a creator. Jesus Christ is not a creator. Jehovah is the only Lord. That type of says before the Paul is receiving. Before they say, but Paul is take the baptism, they receiving the Holy Spirit, the anointing, then after they go to inside the Jews in total Israel, Jews, Paul is shake. जो पौलुस था वो भी पहले यही कहता था कि यीशु मसीहा नहीं है, यीशु सृष्टिकर्ता नहीं है, लेकिन जैसे उसने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा को अभिषेक पाया उसके बाद वो कहने लगा कि यीशु ही मसीहा है, और उसने इज़राइल में जाकर सभी यहूदियों को बताया कि यीशु ही मसीहा है, और उसने पूरे इज़राइल को हिला दिया। हालेलुया। हालेलुया। In Acts 18:5 explanation I will tell you. प्रेरितों के काम 18 के 5 का मैं विवरण बताता हूँ। In Acts 18:5 it is said that Paul got the anointing of the Holy Spirit and so he preaches them that Jesus in the Christ. प्रेरितों 18 अध्याय उसका 5 ये बताती है कि जो पौलुस है उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, उसके बाद वो सभी को यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। So the people are very interesting. I am doing the ministry. They asking. उसके बाद जो लोग थे वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गए और पौलुस से कहने लगे मैं भी मिनिस्ट्री करूंगा करके बोलने लगे। Yeah, but the discipline, spiritual discipline is needed. लेकिन जो आत्मिक अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। Jesus Christ ministry is not an ordinary one. जो यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है, जो सेवा है, वो कोई साधारण नहीं The है। dedication is needed. जो उसमें समर्पित होना The burden is needed. Burden.
हाँ, जो बोझ उठाना जरूरी है। Otherwise, how to God is take use for the Lord's ministry? नहीं तो परमेश्वर आपको कैसे अपनी सेवा के लिए यूज करेगा? In your life, lot of burden. I need car, I need bungalow, I need normal delivery, I need marriage. Everything you are asking. My son get the job. Here pain, here pain, here pain. You are not reading the Bible. Pain is coming. That type of burden in your life. But you are burden for India to get the salvation. आपके जीवन में बहुत सारे बर्डन होते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य चाहिए, मुझे ये दर्द है, बहुत सारे बातों के लिए हम बातों को लेकर हमारे ऊपर बर्डन रहता है। लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आपका बर्डन कैसे जाएगा? क्या आपके ऊपर ये बर्डन है कि इंडिया के जितने भी लोग हैं वो उद्धार पाए? हालेलुया। हालेलुया। In तमिलनाडु में one very big grocery shop. एक बहुत बड़ी ग्रोसरी शॉप है जहाँ सब चीज That people is going to ordinary church of South India once. वो एक बार वो जो लोग हैं वो एक बार साउथ इंडिया के एक चर्च में गए। Church of South India. चर्च ऑफ साउथ इंडिया में Proper गए। Church of South India. चर्च ऑफ साउथ It's a nominal sleeping church that business people is going. वो एक नॉमिनल जो ऐसे सोने वाली कलीसिया है The जहाँ 20 पे lakhs per day selling. जो वो लोग हैं वो 20 लाख रुपए एक दिन में कमाते हैं, But I बेचते will हैं। teaching, I give the baptism that people are receiving the anointing. लेकिन जब मैंने उन्हें बताया उसके बाद मैंने उन्हें बपतिस्मा दिया, उसके बाद उन लोगों ने अभिषेक प्राप्त That किया। people is going to the Pentecostal church. Then after the changing the life. उसके बाद उन लोगों ने पेंटिकोस्टल चर्च में जाना स्टार्ट किया, उसके बाद उन लोगों का जीवन बदल गया। That shop, your pastor David friend Suresh also visiting to see that shop in my place. जो आपके पास्टर डेविड है उनके फ्रेंड भी जो सुरेश नाम के उनके फ्रेंड है वो उस दुकान को देखने के लिए गए थे। So I am teaching that before the church of South India, the peoples are going at that time. That people Sunday also they open to running the shop business. जब मैं उन्हें बताया था उसके पहले जब वो लोग चर्च ऑफ साउथ इंडिया में जाते थे उस समय वे लोग संडे को भी अपना दुकान खोले रहते थे। But I am good teaching. लेकिन मैंने अच्छी I give the baptism. मैंने बपतिस्मा The दिया। peoples are going to the Pentecostal church उसके बाद वो लोग पेंटिकोस्टल and जाने receive the लगे Holy Spirit and the anointing. और उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा और I am अभिषेक not ग्रहण saying किया। automatically Sunday close the people, the family is blessing by Almighty mind. आमेन। उसके बाद वो लोग ऑटोमेटिकली संडे के दिन अपना दुकान बंद रखने लगा और परमेश्वर ने बहुतायत से आशीषित किया। 20 lakhs per day sales. वो एक दिन में 20 लाख रुपए का सामान बेचते हैं। 1000 rupees fish you are selling. No, I am not stop the business in Sunday. आप 1000 रुपए की मछलियां बेचते हैं और आप कहते हैं कि मैं अपने संडे के दिन अपने बिजनेस को नहीं बंद करूंगी। 1000 rupees. सिर्फ 1000 रुपए 20 lakhs. वो 20 लाख की That बात month बंद कर दिए। God is mighty blessing. परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत से आशीष किया। After the close the shop, जैसे उन्होंने अपने दुकान before को only one branch in my place. Before only one branch in my place. वो सबसे पहले पास्टर जी की जगह पे वहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच After था। the close, जैसे उन्होंने बंद 4 branches, 4 ब्रांच 80 lakhs, 80 लाख 1000 rupees you are not banned, आप 1000 रुपए के लिए आप बंद नहीं 20 lakhs banned, करते। उन्होंने 20 लाख के लिए बंद 580 lakhs earning. की। उसके बाद 80 लाख That उन्हें is the मिल गए। obedience. ये है आज्ञाकारिता। Why? क्यों? They're receiving the Holy Spirit. वो क्योंकि उन्होंने पवित्र They're receiving the आत्मा anointing. वो अभिषेक They're ग्रहण- obedient to the Lord word. वो आज्ञाकारी They're रहे। obedient to the servant word. They're obedient to the servant word. वो परमेश्वर के दास के वचनों के अभिषेक God रहे। is blessed. इसलिए परमेश्वर ने आशीषित किया। Hallelujah. हालेलुया। 20 lakhs they banned. 20 लाख कमाने के बाद भी उन्होंने बंद किया। 80 lakhs coming, 4 branches. उसके बाद 80 लाख उन्हें मिल गया और साथ में 4 ब्रांच भी खुल गए। Hallelujah. हालेलुया। Take read आइए पढ़ेंगे Acts 18th chapter, प्रेरितों के काम 18 अध्याय 24-25. उसका 24 और 25। अपुल्लोस नाम का Loud voice. एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। The anointing of the Holy Spirit, today we are meditate. आज हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। A Jew named Apollo.
एक यहूदी था जिसका नाम था who अपोलो, had been born in Alexandria, came to Ephesus. He was an equivalent speaker and had through knowledge of the scripture. जो अलेक्जेंड्रिया में इफिसुस नाम के जगह में जिसका जन्म हुआ था, वो एक स्पीकर था और Excellent speaker. हाँ, वो एक बहुत अच्छा स्पीकर था और सभी को पवित्र शास्त्र के बारे में शिक्षा देता था। Yes, he had been instructed in the way of the Lord. Reason he received Holy Spirit. वो परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार ही शिक्षा देता था, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा ग्रहण किया था। Then the Jew Apollo received the Holy Spirit and anointing. उसके बाद जो अपोलोस है, जो यहूदी है, उसने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और अभिषेक को ग्रहण किया। A Jew named Apollo received the Holy Spirit. एक यहूदी जिसका नाम था अपोलोस, उसने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। And so he can preach the Jews boldly that Jesus is the Lord. उसके बाद वह सभी यहूदियों के सामने निडर होकर प्रचार करने लगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। The gospel, Jesus Christ is the creator. मैंने सभी को वहाँ पे, पास्टर को भी वहाँ पे मैंने सभी को वहाँ पे सुसमाचार बताया कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Inside the Muslims, मुस्लिमों के बीच the में Muslim says Jesus Christ is the messenger. जो मुस्लिम बोलते हैं कि यीशु मसीह एक दूत है, I am says Jesus Christ is a creator. मैंने कहा यीशु मसीह सृष्टि But करता है, nobody to touch. लेकिन किसी ने भी The मुझे border नहीं of Pakistan, बॉर्डर the very पार्ट strong Muslims. वहाँ पे बहुत स्ट्रांग How? रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे टच नहीं I am किया। anointed कैसे? servant. क्योंकि मैं अभिषिक्त दास I हूँ। receive the Holy Spirit. मैंने पवित्र आत्मा ग्रहण Then किया। after I will go to do the ministry. उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री के लिए आगे बढ़ा हूँ। You are also receiving the Holy Spirit. आप भी पवित्र आत्मा ग्रहण You are also किए, receiving the anointing. आप भी अभिषेक ग्रहण। Anywhere you will go to preach the ministry, if any diseases, you are fear you are touched to prayer. यदि आप कहीं पे भी परमेश्वर के सुसमाचार बताने के लिए जाएंगे तो कुछ भी चीज आपको नहीं छू पाएगी, वो चीज आपको छूने के लिए डरेंगी। Hallelujah. हालेलुया। If anybody to take read Acts 19th chapter यदि कोई भी हो तो पढ़ेंगे One- प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 to 6. 1 से लेकर 6। Yeah. 1 to 6. 1 से 6। जब अपोल्लोस कुरिन्थियोस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। Hallelujah. हालेलुया। You are receiving the word. आप वचनों को समझ पा रहे हैं? Paul saw some disciples and asked whether they received the Holy Spirit. पौलुस ने कुछ चेलों को देखा और उनसे पूछा, क्या इन लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है? They replied that they have never heard about the Holy Spirit. उन्होंने रिप्लाई किया कि उन्होंने कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना है। Paul is asked to them disciples. जो पौलुस था वो चेलों से पूछने लगा The था। disciple says, no, I never heard about the Holy Spirit. लेकिन जो चेले वही कहने लगे कि नहीं, मैंने तो पवित्र आत्मा के बारे में सुना भी नहीं है। This type of Pentecostal church believers are also living in India, in the world. ये इस टाइप के लोग पेंटिकॉस्टल चर्च में भी रहते हैं, इंडिया में ही। I am visiting in Baptist church. All over India, Baptist church. भैया, मैं पूरे इंडिया में जितने भी बपतिस्मा देने वाले चर्च में जा चुका हूँ। They take the baptism only, no anointing. वो सिर्फ बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन कोई भी अभिषेक नहीं रहता। They are sleeping inside the church. वो चर्च के अंदर सोते हैं। What is the use to take the baptism? तो बपतिस्मा लेने का क्या मतलब हुआ? சும்மா தண்ணியில முக்கி விட்டுட்டா ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்துருமா? நான் கேக்குறேன் தமிழ் மக்களை. No. I have talked to my Tamil மக்கள். Okay. I give the water baptism. Are you receiving immediately to receiving the Holy Spirit? मैंने आपको पानी से बपतिस्मा दिया, आपने क्या तुरंत ही पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है? No. नहीं।
Paul, they ask him to the disciples. पौल जो है वो चेलों से ही पूछ रहा The था, disciples says, never heard about the Holy Spirit. लेकिन चेलों ने कहा हमने तो पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं है। When Paul kept his hands on them, उसके बाद पौलुस ने अपने हाथों को उनके ऊपर रखा, they spoke different tongues and told prophecy and filled Paul, Apollo and some disciples with the Holy Spirit. This is called anointing. उसके बाद जैसे ही पौलुस ने अपना हाथ उन पर रखा, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे और प्रोफेसी करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। उसके बाद परमेश्वर ने पौलुस, अपोलोस और जितने भी वहाँ चेले थे उन सबों को पवित्र आत्मा से भरा। इसे ही अभिषेक कहा जाता है। Hallelujah. हालेलुया। So in Tamil Nadu, इसलिए तमिलनाडु में the special anointing meeting conduct all over. तो जो तमिलनाडु है वहाँ पे विशेष अनॉइंटिंग मीटिंग संचालित होती है पूरे तमिलनाडु में। Morning 10 o'clock to 5 o'clock or 6 o'clock. सुबह के 10 बजे से शाम के 5 या 6 बजे तक Compulsory fasting. वहाँ पे बिल्कुल ही आपको फास्टिंग रहना कंपलसरी है। No chaya, no coffee. कोई भी चाय कॉफी नहीं मिलता। They need the water only. अगर वो चाहते हैं तो वो पानी ले सकते हैं। All are anointing to receiving from Almighty. सो सभी अभिषेक को प्राप्त करते हैं परमपिता परमेश्वर के अनुग्रह से। How they receiving the anointing? सो वो कैसे अभिषेक को प्राप्त करते हैं? Asking. सिर्फ बोल बोलकर। People are asking only for, I need for bangla, I need for car, I need for jewel, I need for every sari, sudidar, pant, shirt. They only asking. जो लोग होते हैं वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें ज्वेलरीज चाहिए। ये सब चीज के लिए वो लोग मांग करते हैं। Car is need. जो कार है वो जरूरी है। House is need. घर भी जरूरी But है। more than Holy Spirit anointing is need. लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक और भी ज्यादा जरूरी है। So you are asking. इसलिए आपको God is मांगना है। ready to give one. इस परमेश्वर देने के लिए You are receiving the तैयार। anointing and the Holy Spirit. आप परमेश्वर के अभिषेक को Night पाएंगे। 2 o'clock you are walking. The angels are follow with me. Amen. आमेन। तो रात के 2 बजे भी आप जाएंगे। Yeah, you are walking in the dark. Angels are take care for you. अगर रात के 2 बजे भी आप अंधेरे में जाएंगे तो स्वर्गदूत आपकी रक्षा के लिए वहां पर होंगे।